Hello students, welcome back to Prepon. These days we are doing a series on MCQs for prelims 2021. आपका एग्ज़ाम काफ़ी निकट आ गया है. हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं. चलिए आज अगला सेशन करते हैं प्रीलिम्स पर. कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के, कुछ आर्ट एंड कल्चर के, कुछ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, कुछ करंट इश्यूज़ के. लेट अस प्रोसीड. कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक हमने कर लिया था. द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन द DPSP आर्टिकल 38 क्लॉज 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रेपॉन की वीडियोस में हम डिस्कस भी कर चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ. ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आ चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ. तो इनमें से रूल ऑफ लॉ से संबंधित कौन से मेन फीचर्स हैं. रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ एज आई हैव डिस्क्राइब्ड यू. द डेफिनेशन गिवन बाय A.B. Dicey in England. So supremacy of the constitution, supremacy of the law, equality before the law, and the rights and liberties of the people are codified in the law and are well protected by the courts of the country. So yes, when we say supremacy of the law, it simply means law is supreme, neither the government using its power or the judiciary or the legislature is supreme. So yes, limitation on powers is one of the important, you can say, inference of rule of law, because law is supreme. Everybody is accountable to law, accountable to people through law. So nobody can be above the law. So yes, it entails the phrase supremacy of the law entails the meaning that limitation on powers of the organs of the governance, correct? And equality before law is an important feature of what? Rule of law. If law is not equal for all, obviously there cannot be rule of law. So equality before law is also important. Law should be equally applicable to everybody. And I also told you that not only law should be equally applicable to everybody, law should be accessible to everybody. सबको, सबकी लॉ तक पहुँचो, जस्टिस सिस्टम तक पहुँचो, कोर्टों तक पहुँचो, वो भी इक्वलिटी बिफोर लॉ में आता है, करेक्ट है. पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट. ऑब्वियसली अगर हम डेफिनेशन में जाएं, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट इज नॉट इम्प्लिसिट पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. रादर गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव टू द पीपल. And liberty and civil rights, I have told you, the liberty and rights of the people are well enshrined in the law and are protected by the courts. Basically जो liberty और rights लोगों के होते हैं वही तो limitations हैं organs of governance की powers पर. तो first, second and fourth are the main features of rule of law. So answer is C. Remember the definition of rule of law. Rule of law, और मैंने describe किया था कि law का मतलब होता है कि लॉ बहुत सिंपली वर्डेड होना चाहिए, लॉ तक पहुंच हर एक की होनी चाहिए, और लॉ का उद्देश्य लोगों को जस्टिस इक्विटी देना होना चाहिए. अगर लॉ इन फीचर्स को एंटेल नहीं करता है तो रूल ऑफ लॉ में जो वर्ड लॉ इस्तेमाल हुआ है वो उसका मीनिंग नहीं है. अल्टीमेट पर्पस ऑफ लॉ इज टू गिव इक्विटी एंड जस्टिस टू एवरीबडी, एंड एवरीबडी शुड हैव रीच टू द लॉ. एवरीबडी शुड हैव द इक्वल बेनिफिट ऑफ द लॉ एज अप्लाइड बाय द कोर्ट्स इन द लॉ ऑफ द लैंड. सो 1, 2 and 4 is the right answer. A question from modern India. Consider the following statements about the economic impact of the British rule. British rule का जो economic impact है, यहाँ से बहुत questions आ जाते हैं. हम बात कर रहे हैं early period की. During the British rule, the moneyed classes were keen to buy land and become landlords. शुरू के समय में जिनके पास पैसा था वो land buy करने में लगे हुए थे. Used to become landlord and used to earn lot of revenue. जो share कर लिया करते थे वो government के साथ. तो शुरू में ऐसा होता था, those who had money they wanted to gather more and more land because land had become saleable commodity बना दी थी कॉर्नवालिस ने. पहला स्टेटमेंट. दूसरा, one of the reasons was that there were no effective outlets for investment for their capital in the industry. और क्योंकि भारत में उद्योग डेवलप हुआ नहीं था, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, ऐसा कुछ भारत में उन्होंने होने नहीं दिया. इंडिया में जो फिनिश्ड गुड्स थे वो इंग्लैंड से आया करते थे.
इंग्लैंड की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल यहाँ से जाता था, वहाँ से सामान बन के आता था। क्योंकि फैक्ट्री जैसे उद्योग जैसे या इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का विकास अंग्रेज़ों ने होने नहीं दिया, इसलिए उनके पास कैपिटल को इन्फ्यूज़ करने के लिए और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। तो जो ओनली ऑल्टरनेटिव था वो था लैंड, तो वो लैंड में पैसा लगा दिया करते थे। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट so far as economic impact of the British rule is concerned. A typical question from class 12th NCERT. Both are correct. And to explain one also, this is also correct कि इसकी वजह से ही ऐसा होता था। 1946 में एक तेभागा मूवमेंट हुआ। हम पीजेंट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। द तेभागा मूवमेंट इन बंगाल वॉज अ मूवमेंट अगेंस्ट द रिपोर्ट ऑफ फ्लाउड कमीशन। एक फ्लाउड कमीशन आया था, उसकी रिपोर्ट के अगेंस्ट बंगाल में पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया था। पहला स्टेटमेंट, द फ्लाउड कमीशन रिकमेंडेड 1/3 ऑफ द क्रॉप्स टू पीजेंट्स इन प्लेस ऑफ 1/2। पहले जो मालिक थे और जो पीजेंट्स थे उनके बीच में आधा आधा ये बढ़ जाता था, लेकिन फ्लाउड कमीशन ने कहा नहीं मालिकों को 2/3 मिलेगा और शेयर क्रॉपर्स को 1/3 मिलेगा। तो तेभागा मूवमेंट इन बंगाल वॉज not against the report of Flood Commission, बल्कि they wanted the government to implement the Flood Commission. Flood Commission ने ये कहा था कि किसानों को 2/3 शेयर मिलना चाहिए, पीजेंट्स को 2/3 शेयर मिलना चाहिए, लैंडलॉर्ड्स को 1/3 मिलना चाहिए। तो और ये इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा था। तो जो मूवमेंट हुआ था वो फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हुआ था, उसके अगेंस्ट नहीं हुआ था। और फ्लाउड कमीशन ने कहा था कि किसानों को 2/3 मिलना चाहिए, ना कि 1/2, 2/3 मिलना चाहिए। इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। डी इज़ द आंसर। याद रखेंगे फ्लाउड कमीशन का जो पीजेंट का रिवोल्ट हुआ था, फ्लाउड कमीशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हुआ था, उसके अगेंस्ट नहीं हुआ था। और फ्लाउड कमीशन ने किसानों को 2/3 शेयर की बात कही थी। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। वैसे ऐसे पहले भी होता रहा था, उसका रिफाइंड वर्जन वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। सब्सिडियरी अलायंस, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सब्सिडी, भारतीय राज्यों पे वो अप्लाई कर दिया करता था, इम्प्लीमेंट करता था सब्सिडियरी अलायंस, उनसे साइन करा लिया करता था और ये कहता था आपके डिफेंस का काम अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, उसके बदले आपको पैसा देना होगा, ज़मीन देनी होगी, उससे संबंधित क्वेश्चन है। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सब्सिडी, द इंडियन स्टेट वॉज रिक्वायर्ड टू अलॉट टेरिटरी yielding subsidy equal to the amount required for maintaining troops for its protection. इंडियन स्टेट्स की आर्मी डिसबैंड कर दी जाएंगी और उनके डिफेंस का काम ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ये काम करेगी उसके बदले हमको कैश सब्सिडी देनी होगी। अगर आप सब्सिडी नहीं दे पाएंगे तो आप उतनी ज़मीन हमको दे देंगे, उतनी ज़मीन जितनी ज़मीन से उतनी सब्सिडी हम निकाल सके। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इंडियन स्टेटमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू पे ओनली कैश सब्सिडी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग मिलिट्री प्रोटेक्शन, या भारतीय राज्यों को सिर्फ कैश सब्सिडी देनी थी, टेरिटरी यील्ड नहीं करनी थी। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, इन सम केसेस देयर वाज नाइदर अलॉटमेंट ऑफ टेरिटरी नॉट पेमेंट ऑफ कैश सब्सिडी, बोथ प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू ईच अदर अंडर म्यूचुअल एग्रीमेंट। तीसरा स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली पहला सही है कि आपको सब्सिडी देनी है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है सब्सिडी नहीं दे पाएंगे तो हम उतनी ज़मीन आपकी ले लेंगे जितनी सब्सिडी के बराबर। अगर सब्सिडी देने में असक्षम है तो हम वो ज़मीन ले लेंगे, उसके रेवेन्यू से सब्सिडी रियलाइज कर लेंगे। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है कि उनको सिर्फ कैश सब्सिडी देनी थी, वो ज़मीन के ज़रिए भी पैसा ले सकते हैं। और ये भी गलत है कि सब्सिडी भी नहीं देनी थी, कैश भी नहीं देना था, टेरिटरी भी नहीं देनी थी, दोनों एक दूसरे को डिफेंड करेंगे। तीसरा भी गलत है। तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। उस समय नेपोलियन के अटैक का खतरा भारत पे बढ़ता जा रहा था और भारतीय राज्यों में बहुत सारे नेपोलियन सोल्जर्स और ऑफिसर्स अपॉइंट होने लगे थे। ये देखते हुए वेलेस्ली को लगा कि ऐसा ना हो कि फ्रांसीसियों का आतंक फिर भारत में हो जाए। इससे पहले कि भारतीय राज्यों में फ्रांसीसी सैनिकों की, ऑफिसर्स की दखलंदाजी बढ़े, तो वी शुड समहाउ ओवर पावर ऑल द इंडियन स्टेट्स। ये सोचते हुए उन्होंने कहा था कि आपका डिफेंस सिस्टम हम देख रेख करेंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी हम देख रेख करेंगे, और आपके राज्य में हमारा रेजिडेंट बैठा करेगा जो आपको गवर्नेंस में मदद करेगा। बेसिकली भारतीय राज्य को अपने कंट्रोल में लेने का तरीका था सब्सिडियरी अलायंस।
implemented by Wellesley. तो first is correct, second, third are not correct. In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी पूछी जा रही है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स. मैंने आपको बताया आपके राइट्स और लिबर्टीज गवर्नमेंट पे लिमिटेशंस के तौर पे काम करते हैं. अगर गवर्नमेंट टायरेंट है, ठीक से काम नहीं कर रही है, एब्यूजिव है, तो आप कोर्ट जाकर अपने लिबर्टीज और राइट्स का दावा पेश करके सरकार की एब्यूज से बच सकते हैं. हो भी सकता है. एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, ये भी सही है. रुकावटें कम हो जाएं तो भी लिबर्टी आपको मिलती है. अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, कुछ भी करने की आज़ादी होना लिबर्टी नहीं होती. ये मैंने आपको बताया था, ये तो आउटराइटली ख़त्म हो गया. अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, अपने आप को अपना ओवरऑल अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट अचीव करने की आज़ादी होना. तो हम पूछ रहे हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन. अगर हम ये भी सही है, राइट्स और लिबर्टीज़ के ज़रिए हम सरकार की अब्यूज़ से बच सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकता है. एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स आई टोल्ड यू वाज नेगेटिव लिबर्टी. एक बेयर मिनिमम एरिया होता है जहाँ पर किसी का हस्तक्षेप ना हो, रुकावटें ना हो, इंटरफेरेंस ना हो, रेस्ट्रेंट ना हो, उसे नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं. लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है, ये तो बात सही है कि मुझको लिबर्टी दे दी गई, ये बात सही है कि आई हैव लिबर्टीज एंड राइट्स, बट इफ आई एम नॉट प्रोवाइडेड मैकेनिज्म टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ. इफ आई एम नॉट प्रोवाइडेड, मुझे लिबर्टी है, बहुत सारी लिबर्टी है कि यू कैन अर्न योर लाइवलीहुड, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के साधन मेरे पास नहीं हैं, नौकरियां यहाँ नहीं हैं. ये आपको बोला गया है कि आप मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन चलने योग्य सड़कें नहीं हैं. तो ऐसे उससे क्या फ़ायदा. इसलिए वो हालात पैदा करना जिससे व्यक्ति अपना पूर्ण विकास डेवलप कर पाए, ये लिबर्टी का रियल मीनिंग होता है. तो इन चारों ऑप्शंस के अनुसार द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी इज द दैट मीनिंग विच आई टोल्ड यू इन द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, दैट ऑल द कंडीशंस शुड बी सच, लिबर्टी, द अवेलेबिलिटी ऑफ लिबर्टी शुड बी सच, दैट कंडीशंस should be made such or in such a manner that person can use all his liberties to develop himself in all the directions. कागजों पे लिबर्टी दे देना सफिशिएंट नहीं होता, लिबर्टी को एंजॉय करने के हालात पैदा करना ही लिबर्टी का रियल मीनिंग होता है. Hence D is the right kind of answer. Another question of Indian polity: which of the following doctrines or theories is not followed in its what absolute form in the Indian constitutional scheme? भारतीय संविधान के सिस्टम में कौन सा इनमें से फीचर है जो एब्सोल्युटली फॉलो नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्म में फॉलो होता है, डाइल्यूटेड फॉर्म में फॉलो होता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स पहला फीचर, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी दूसरा फीचर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और फेडरल सिस्टम. तो इनमें से कौन सा है जो एब्सोल्युटली फॉलो होता है, कौन सा है जो एब्सोल्युटली फॉलो नहीं होता है? तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, लेजिस्लेचर अपना काम करे. बट सिंस वी फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, and in the parliamentary form of government there is executive and there is legislature. And you know, in our system which is parliamentary form of government, executive is those who are PM and ministers, है ना, वो होते हैं. तो और every minister has to be an MP. Every minister ultimately has to be an MP. इसका मतलब every member of executive has to be member of legislature. It means in our system there is no absolute separation of power because executive and legislature are same. Executive is a subset of legislature. Every member of executive is also a legislator. Hence it is not absolutely followed. इसका मतलब जिसका बहुमत है वो एग्जीक्यूटिव बन जाएगा. इसका मतलब ये भी हुआ कि जिसका बहुमत है वो लेजिस्लेचर को अपने हिसाब से चलाने की क्षमता रख सकता है. जितनी ज़्यादा उसकी बहुमत है उतना ज़्यादा लेजिस्लेचर को अपने कंट्रोल में ले सकता है. इसका मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन एब्सोल्यूट फॉर्म में फॉलो नहीं होता. रादर देयर इज व्हाट फ्यूजन ऑफ पावर. फ्यूजन ऑफ पावर ज़्यादा है because executive is a subset of legislature. Those who are MPs, only those people can become ministers also. तो ये नहीं होता. Constitutional supremacy है in our system. संविधान सर्वोपरि है, ना एग्जीक्यूटिव ना लेजिस्लेचर, कोई इससे ऊपर नहीं, सबसे ऊपर संविधान है. ये एब्सोल्युटली फॉलो होता है. संविधानवाद
भी एब्सोल्युटली फॉलो होता है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज इनबिल्ट mechanisms by which executive is, you can say, under the radar of parliament, and parliament under the radar of supreme court, and judiciary under the radar of parliament। तो तीनों ही एक दूसरे पर एक कंट्रोल रखते हैं ताकि तीनों सुप्रीम ना हो पाए, संविधान सुप्रीम रहे। जजेस ठीक से काम नहीं करेंगे, पार्लियामेंट इम्पीचमेंट कर देगा, पार्लियामेंट्री लॉ अगर गलत है सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू कर देगा, सरकार ठीक से काम नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू करके एफिडेविट मांग लेगा, सरकार ठीक से काम नहीं करेगी, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी फॉलो होता है। फेडरल सिस्टम एब्सोल्युटली फॉलो नहीं होता है, बिकॉज हेयर सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती हैं और राज्यों की पावर्स कुछ कंडीशंस में डाइल्यूट हो जाती हैं, सेंटर अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसलिए हमारा क्वाशाई फेडरल सिस्टम है जिसमें सेंटर कुछ हालातों में राज्यों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर नॉट एब्सोल्युटली फॉलोड, सेकंड एंड थर्ड आर एब्सोल्युटली फॉलोड। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द आंसर, दैट इज सी इज द आंसर। Which of the following is considered as the most important function of a welfare state? हम डिस्कस कर चुके हैं वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट काफ़ी पहले से मौजूद है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक बेवरेज रिपोर्ट आई थी जिसमें इसे साफ साफ बताया गया, एंड वी हैव डिस्कस्ड इट इन द लास्ट सेशन। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है दस गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन डूइंग बाय टेकिंग अफर्मेटिव एक्शन टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द पीपुल। सरकार पब्लिक सोशल सेक्टर स्पेंडिंग करे ताकि लोगों को रोज़गार मिले, उनको अच्छी हेल्थ मिले, उनको एजुकेशन मिले। अगर प्राइवेट संस्थाओं पे छोड़ दिया जाएगा तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करता है, गवर्नमेंट वेलफेयर ओरिएंटेड काम करती है, इसलिए शायद प्राइवेट सेक्टर ऐसा ना करे। इसलिए जब गवर्नमेंट सोशल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इंटरवीन करती है तो वेलफेयर स्टेट कहलाती है। तो ओबियसली मेकिंग पब्लिक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग सोशल जस्टिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। सरकार सब्सिडी देती है, सस्ता राशन देती है, लोगों को रोज़गार देती है, पीपीएल फैमिलीज़ को बेनिफिट देती है, रिजर्वेशन दे सकती है। ये सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं ये वेलफेयर स्टेट में आ जाते हैं। तो डी इज़ द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान के बारे में कुछ क्वेश्चंस। इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद अ लिटिल स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। यस वी फॉलो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, रिजिड ज़्यादा है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इट रिकॉग्नाइजेज मल्टी लेवल गवर्नेंस सिस्टम विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एट ऑल लेवल्स। मल्टी लेवल गवर्नेंस सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सभी लेवल्स पर है। तीसरा स्टेटमेंट, ओनली दोज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कैन बिकम मिनिस्टर्स मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट। मंत्री वही बन सकते हैं जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुए हों। इनमें से कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट, यस इंडिया डज हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट देयर इज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ अमेंडेबल, ये अमेंडेबल है। 100 से ज़्यादा बार ये चेंज हो चुका है, इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, रिजिड कम है। रिजिड भी है, कुछ चीज़ें चेंज कभी नहीं हो सकती बाय वर्च्यू ऑफ थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट सिंस इट हैज़ बीन अमेंडेड गुड नंबर ऑफ टाइम्स, इसका मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप इसमें ज़्यादा है, लिटिल नहीं है, कम नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। संविधान समय के हिसाब से रिस्पॉन्स देता रहता है, ये डायनेमिक है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवंत है, अपने आप को बदलने की क्षमता इसके अंदर है, लेकिन हाँ इतना नहीं बदलेंगे कि इसका मूलभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा ही खत्म हो जाए। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, इसमें चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। अगर कंडीशंस जो दे रखी हैं वो मीट करेंगे तो चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा। ये बिल्कुल सही है, मल्टी लेवल गवर्नेंस सिस्टम होता है, 3 टियर सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायत गवर्नमेंट है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बाकायदा संविधान में लिखी हुई है, बिल्कुल सही है। ये गलत है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होंगे वही मंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनने के लिए एमपी या एमएलए होना ज़रूरी है, और एमपी एमएलए इलेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। इसका मतलब नॉमिनेटेड व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है, ना बने बात अलग है, बट एलिजिबल तो है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है कि ओनली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कैन बिकम व्हाट, द मिनिस्टर। हेंस थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर wrong. B is the answer.
You are asking incorrect. Which art and culture का क्वेश्चन, which of the following folk art is are correctly matched with their regions? ये कौन सी आर्ट कहाँ की है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ढोकरा छत्तीसगढ़, अजरक राजस्थान, पट्टचित्र जम्मू एंड कश्मीर, फड़ पेंटिंग्स महाराष्ट्र. इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? ढोकरा आर्ट बेसिकली छत्तीसगढ़ की आर्ट होती है, नॉन फेरस मेटल की आर्ट होती है. एक सांचे में डालकर इमेजेस बना दी जाती हैं या जो ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ की आर्ट होती है. ढोकरा आर्ट बिल्कुल सही है, मेल्ट करके मेटल को. अजरक क्लॉथ पेंटिंग होती हैं राजस्थान की, अजरक क्लॉथ पेंटिंग होती है राजस्थान की, ये भी सही है. पट्टचित्र होते हैं वो उड़ीसा के होते हैं, ये जम्मू कश्मीर के नहीं होते हैं, उड़ीसा आर्ट है, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ. और फड़ पेंटिंग राजस्थान के भीलवाड़ा की क्लॉथ पेंटिंग्स होती हैं. तो थर्ड और फोर्थ आर नॉट करेक्टली मैच्ड, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्टली मैच्ड. तो ए इज द आंसर. Dokra, also spelled Dokra, is a non-ferrous metal casting using the lost wax method. Dokra Damar tribes are the traditional metalsmiths of West Bengal and Odisha. Their technique of lost wax casting is named after their tribe, hence Dokra metal casting. The tribe extends from Jharkhand to West Bengal, Odisha. Members are distant cousins of the Chhattisgarh Dokras. So basically it is main art of Chhattisgarh. अजरक इज़ ए क्लॉथ आर्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. ये गुजरात राजस्थान की मेन क्लॉथ आर्ट होती है. फड़ पेंटिंग भीलवाड़ा राजस्थान की होती हैं और उड़ीसा के पट्टचित्र हुआ करते हैं जो क्लॉथ पे पेंटिंग बनाई जाती है. हेंस दिस इज द आंसर. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स, संविधान के प्रोविजंस के अनुसार फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ चॉइस, freedom not to follow any religion, and freedom to manage affairs of religion as a matter of fundamental right. हम बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, आर्टिकल 25 से 28 की. उससे अगर इन्फ्लुएंस निकाला जाए तो यस, एवरीबडी हैज़ एज पर आर्टिकल 25 सब्जेक्ट टू हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी. एवरीबडी हैज़ वॉट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस. हर व्यक्ति को अपनी कॉन्शियंस बनाने की पूरी आज़ादी है. वो अपने रिलीजन, अपने चॉइस के रिलीजन को फॉलो कर सकता है. ही कैन प्रोफेस फॉलो रिलीजन ऑफ हिज चॉइस. जिस रिलीजन को चाहे वो फॉलो कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, उसको फंडामेंटल राइट है. तो आर्टिकल 25 के अनुसार बिल्कुल सही है. एवरीबडी हैज़ फ्रीडम टू चूज हिज रिलीजन ऑफ हिज चॉइस. नोबडी कैन कंपेल एनीबडी. फ्रीडम नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, जब हम फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी अंतर सोच, अंदरूनी सोच गॉड के संदर्भ में कैसी बनाएं, इसका हमको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है. गॉड एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ माई फंडामेंटल राइट. तो जो आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस लिखा हुआ है उसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये मेरे ऊपर है कि मैं मानूँ गॉड है या नहीं है आकार है या निराकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है. तो ये भी सही है कि फ्रीडम नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन इज ऑल्सो फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 25 phrase what freedom of conscience. और आर्टिकल 26 कहता है एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ राइट टू मैनेज अफेयर्स ऑफ रिलीजन एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट. हर धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों को फॉलो करने का, मैनेज करने का फंडामेंटल राइट है. बिल्कुल सही है. तो तीनों ही सही हैं, तीनों ही सही हैं जहाँ तक आर्टिकल 25-26 की बात है. ऑल द थ्री आर करेक्ट. All the three are correct. Consider the following statements about the spread of Indian culture outside India during ancient medieval period of Indian history. कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, भारतीय कल्चर भारत के बाहर भी फैला, उससे संबंधित. अंगकोर वट टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु इज लोकेटेड इन कंबोडिया. कंबोडिया में अंकोर वट टेम्पल डेडिकेट, जो लॉर्ड विष्णु टेम्पल है ये अंकोर वट में है. अंकोर वट टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. ये जो टेम्पल की शैली है नागर, वेसर और द्रविड़, तो ये नागर शैली में बना हुआ है जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स की शैली मानी जाती है भारत में. दूसरा, सिगड़िया पेंटिंग्स इन श्रीलंका वर मॉडल्ड अजंता पेंटिंग्स. लंका की सिगड़िया पेंटिंग्स अजंता पेंटिंग्स में मॉडल्ड हैं. द शैलेंद्र रूलर्स ऑफ जावा सुमात्रा इन अर्ली मेडिवल एज कंस्ट्रक्टेड बोरोबुदुर स्तूपा.
जो जावा सुमात्रा के मतलब इंडोनेशिया के शैलेन डायनेस्टी के रूलर्स थे, अर्ली मेडिवल एज में इन्होंने बोरोबुदुर स्तूप बनाया था। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो पहला बिल्कुल करेक्ट है कि जो अंगकोर में जो टेम्पल है, वट माने टेम्पल, अंगकोर वट टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है और इसमें महाभारत और रामायण के चित्र बनाए गए हैं, थीम्स दिखाए गए हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये द्रविड़ शैली में बना है, नागर शैली में नहीं बना है। इट इज़ इन द्रविड़ स्टाइल नॉट नागर स्टाइल, तो सेकंड इज नॉट करेक्ट। थर्ड इज करेक्ट। सिगड़िया पेंटिंग्स श्रीलंका की जो है वो अजंता पेंटिंग्स के बेस पे ही बनाई गई हैं, थर्ड इज करेक्ट। शैलेन रूलर्स ऑफ जावा एंड सुमात्रा एंड अर्ली मेडिवल एज कंस्ट्रक्टेड बोरोबुदुर स्तूप, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सी इज द आंसर। The most famous temples in present-day Cambodia is the Temple of Vishnu, built by Suryavarman II in his capital city Angkor Wat माने temple. It is popularly called as the Angkor Wat Temple. Standing on the top of terraced structure, the temple is constructed in the Dravidian style and sculpture depict themes from Mahabharata and Ramayana. The famous paintings of Sigiriya were modeled on the Ajanta painting. The greatest monument of Indo-Java art is the Borobudur, which was built during this period under the patronage of Shailen. It is situated on the top of a hill. It consists of 9 successive terraces crowned by a bell-shaped stoop at the center. Borobudur is described as epic in stone, the most wonderful Buddhist stoop in the world in Indonesia. Indonesia में होता है. According to provisions of the Constitution of India, states have guarantee of territorial integrity. राज्य को गारंटी है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की। पहला स्टेटमेंट, स्टेट्स हैव गारंटी अगेंस्ट चेंज ऑफ इट्स नेम, राज्यों का नाम चेंज नहीं हो सकता, ये उनको गारंटी है। स्टेट्स हैव गारंटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद द यूनियन एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। इनमें से कौन से करेक्ट हैं? तो पहला करेक्ट नहीं है। अंडर आर्टिकल 3, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन ऑल्टर द एरियाज ऑफ स्टेट, चेंज देयर टेरिटरीज। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट चाहे लॉ बना के राज्यों को छोटा बड़ा कर सकता है, नया राज्य क्रिएट कर सकता है, 2 राज्यों को मिला सकता है। हाँ, ऐसा करने से पहले वो जो बिल है वो राष्ट्रपति रिकमेंड करेंगे और राज्यों के पास या उस राज्य के पास जाएगा ज़रूर जिसका एरिया कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन राज्य की जो राय है वो सेंटर पे बाइंडिंग नहीं होती। राज्यों को बिल ज़रूर भेजा जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड निकाल रहे हैं, एमपी से बुंदेलखंड निकाल रहे हैं राज्य, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को बिल जाएगा ज़रूर, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश कहते हैं कि नहीं बुंदेलखंड मत बनाइए, तो उनकी राय का सेंटर पे कोई असर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बाइंडिंग नहीं है। तो उनको गारंटी नहीं है कि उनकी अखंडता है वो गारंटीड है। नो, वो राज्यों को कभी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं एज पर आर्टिकल 3। और आर्टिकल 3 में ये भी है, सेंटर चाहे तो राज्य का नाम चेंज कर सकता है, बिल जाएगा सेंटर, वही सेम कंडीशन से बिल जाएगा ज़रूर। तो यहाँ भी राज्यों को गारंटी नहीं है कि उनके राज्य का नाम चेंज सेंटर करेगा तो वो कुछ नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, सेंटर के हाथ में है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, राज्यों के हिसाब से चला जाता है क्योंकि राज्यों का नाम राज्यों के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन सेंटर के पास अधिकार है। इस केस में सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। स्टेट्स हैव ए गारंटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद द यूनियन, ये बिल्कुल सही है। शेड्यूल 7 में उनके पास अधिकार है कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर संविधान से मिली हुई है, लेकिन हाँ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें हो सकता है उनकी पावर सेंटर के पास चली जाए, देश में इमरजेंसी लग जाए या राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए, या आर्टिकल 249 में राज्यसभा कह दे कि राज्य के मुद्दे पर पार्लियामेंट लॉ बनाए। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें सेंटर अपने पास पावर ले ले, अदरवाइज उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की। तो थर्ड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही नहीं है। 3 इज द आंसर। स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर SCs एंड STs बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ, संविधान की बात कर रहे हैं। स्पेशल प्रोविजंस SC STs के लिए गवर्नमेंट बना सकती है, अगर बनाएगी तो वो फंडामेंटल राइट्स के फुलफिलमेंट के लिए बना सकती है सिर्फ, या DPSP भी, या दोनों को। तो ओबियसली हमने संविधान ठीक से पढ़ा है। आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के तहत भी ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। आर्टिकल 15(4) में भी ऐसा हो सकता है कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल लॉज बना सकते हैं।
बिल्कुल हो सकता है। और 16(4) में नौकरियां दी जा सकती हैं, रिजर्वेशन दिया जा सकता है, प्रमोशन में दिया जा सकता है। ऐसे ही DPSP में भी आर्टिकल 46 में SC/ST के इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। तो जब भी सरकारें SC/ST के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाएं तो फंडामेंटल राइट से भी फ्लो करती हैं, DPSP से भी फ्लो करती हैं, दोनों ही सही हैं, बोथ आर करेक्ट। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4), 16(4)(a), आर्टिकल 46 and many more are there under which special provisions can be made for SCs and STs. Both are correct. Which of the following statements are correct about the equality as inferred from Article 14? Article 14 का inference निकालें तो equality के बारे में बात हो रही है। The Constitution does not assume that all the persons are equally capable and similarly circumstanced. संविधान ये बिल्कुल नहीं मान के चलता है कि सभी लोग बराबर हैं और सबके हालात एक से हैं। बिल्कुल सही है, संविधान बिल्कुल नहीं मानता। संविधान मानता है कि डिफरेंसेस होते हैं, बाई बर्थ भी होते हैं और हालातों द्वारा भी पैदा होते हैं। तो संविधान मानता है कि बिल्कुल नहीं मानता है कि सब लोगों के हालात एक से हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि डज नॉट एज्यूम कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल एंड आर सिमिलरली सर्कमस्टांस्ड, बिल्कुल सही है। डिफरेंस इन सर्कमस्टांसेस वैलिडेट डिफरेंस इन ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्लॉज जो आर्टिकल 14 में, उसका मतलब ही ये होता है जिसके हालात एक से उसके साथ उचित व्यवहार, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। जिनके हालात एक से उनके साथ एक सा व्यवहार, जिनके हालात बेहतर उनके साथ व्यवहार अलग तरीके से हो सकता है। कुछ को रिजर्वेशन मिल सकता है, कुछ को नहीं मिल सकता है, कुछ को सस्ता राशन मिल सकता है, कुछ को नहीं मिल सकता है। जो बेहतर हैं उनको शायद कंसेशन ना मिले, जो डेवलप्ड हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं उनको कंसेशन मिल सकता है। तो ये भी सही है, हालात अलग से हैं तो ट्रीटमेंट भी अलग हो सकता है। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से निकलता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ मे बी अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 14 का जो पहला फ्रेज है, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज़ नॉट एब्सोल्यूट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, उनके लिए कुछ अलग हालात हो सकते हैं। तो बिल्कुल एब्सोल्यूट फॉलोइंग नहीं होती है भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ की। लॉ में ट्रीट people differently as per the circumstances, so there is no absolute equality before law in the Indian constitutional system. The equality before law may be affected by various factors. Yes, it may be affected by the special position of governor and president. It may be affected by the economic and socio-economic condition of the people of India. So it may be affected by various factors. This is correct. तो first is correct, बिल्कुल सही है। तो all the three are correct, तीनों ही सही हैं। D is the answer. So these are the questions of art and culture, modern India and Indian polity we have to discuss today. Hope you have enjoyed the session और आपके कंसेप्ट और क्लैरिटी आ रही होगी, एग्जाम के लिए और अच्छे कंसेप्ट रिवाइज होते जा रहे होंगे आपको ये सब पता तो है ही। चलिए, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।